नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 34 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद द्रधाम तस्याहम निग्रहाम मन्ये वयोर इवा सु दुष्कराम। For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think it is more difficult than controlling the wind. सो अगर माइंड हमारा रेस्टलेस होता है, उसमें टर्ब्यूलेंट फोर्सेस होते हैं, वो ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट, इसको कंट्रोल में लाने के लिए आई थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। माइंड जितना रेस्टलेस होता है उसको कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने से भी डिफिकल्ट होता है। ये हमारे अर्जुन बोल रहे हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। द माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इट समटाइम्स बिकम्स ओवरकम्स द इंटेलिजेंस। ऑल्सो द माइंड is supported to be subservient to the intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. So mind में इतने सारे thoughts चलते हैं या इतना कुछ होता है, तो कभी कभी हो सकता है कि माइंड को आप कंट्रोल करने में सक्षम ना रहे। Artificially, one may establish a mental equilibrium towards both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so, for this is more difficult than controlling the raging wind. So बहुत सारे लोग एक mental equilibrium को establish करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं, but mental equilibrium को establish करना, balance करना, हवा को balance करने से, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा को balance करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। In the Vedic literature, it is said, Katha Upanishad 1.3.3.4, Atmanam Rathinam Vidhi Sariram Ratham Ivacha Buddhim tu Sarathim Vidhi Mana Pragraham Ivacha Indriyani Hayan Ahur Visayams Tesu Gocharan अतमेन्द्रिया मानो युक्ताम भोक्ते अहुर मनीषिना। The individual is the passenger in the car of the material body and intelligence is the driver. तो हम जो इंडिविजुअल है वो हम पैसेंजर है और हमारा दिमाग हमें चला रहा है, ऐसा सिचुएशन है। माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट एंड द सेंसेस, इसीलिए बोला जाता है जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया वो मालिक बन गया। जिसका माइंड उसको कंट्रोल करता है उसको मुश्किलात होती है। Mind is a driving instrument and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such a practice is never practical for a worldly person like Arjuna. तो योग जो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनको माइंड कंट्रोल करना फिर भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन साधारण लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड what can we say of modern man? The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance in all humanity. The method described, जैसे हरे कृष्ण मंत्र को आप बार बार चैंटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपकी मेडिटेशन जैसी हो जाती है, इसीलिए आपके मन शांत हो जाता है, पीसफुल महसूस होता है। एंड टर्ब्यूलेंट विंड जो बहुत ही तेज़ी से चल रहा हो विंड, उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते, नहीं कर सकते, तो उस तरीके से माइंड को कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। So is great mantra. The method prescribed in Savai Mana Krishna Padaravindyau. One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. अगर मन को पूरी तरीके से आपने कृष्ण भगवान पे लगा दिया, कृष्णा पे लगा दिया, तो कोई और चीज़ आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। यही तो था श्लोक नंबर 34 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6। अगले वीडियो में हम श्लोक 35 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।